Hello students, today we will start exercise 10.4. As we have discussed in our live classes, theorem 10.6 and theorem 10.7. Some questions of this exercise are based on these two theorems. So let's discuss first these theorems. Equal chords of a circle are equidistant from the center. Means if there are two chords, these are AB and CD. AB and CD. These are two equal chords of a circle. Are equidistant from the center. Let O is the center. This is perpendicular from the center on this chord. Name is OL, and this is also the perpendicular from the center on the chord CD, named as OM. So these are perpendiculars OL and OM on the chords AB and CD respectively. Here students, in this theorem we have given chords are equal. Means given is AB is equal to CD. Okay. And what you have to prove? These equal chords are equidistant from the center. Means this OL is equal to OM. We have to prove OL is equal to OM. Okay. First theorem क्या है? If chords are equal, then these are equidistant from the center. This is the result of this theorem. And in the second theorem, what is given? Chords of a circle which are equidistant from the center. जो equidistant है, given क्या है हमें? Chords are equidistant from the center. Means OL is equal to OM. Are equal. What we have to prove? Chords are equal. AB is equal to CD. Right? दोनों कन्वर्स हैं एक दूसरे के. जो थ्योरम 10.6 है, 10.7 क्या है उसका कन्वर्स है. We will use these result in our questions students. इनके स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में है, प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है. फिर भी मैं वीडियो के बाद आपके पास इनके प्रूफ सेंड करूंगी. अगर आपको अपनी नॉलेज के लिए वो प्रूफ करनी है तो आप कर सकते हो, देख सकते हो. ओके, we will use this statement only. Okay, if chords are equal, then they are equidistant from the center, or if chords are equidistant from the center, then chords are equal. We will use these two result. Second question of exercise 10.4. If two equal chords of a circle intersect within the circle, what is given? Two equal chords. Look, these chords are AB and CD. These are intersecting chords. These are intersecting chords. Means like this, AB and CD. AB and CD are two intersecting chords. Let these intersection point is T. Okay. Prove that segment of one chord are equal to corresponding segment of other chord. Means what is given? AB is equal to CD. Chords are equal. To prove segment of one chord means these are two chords AB and CD. These are equal chords. Okay. इसका सेगमेंट क्या होगा? T इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये CD हो जाएगा. इस CD chord के इस सेगमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा सेगमेंट होगा? AT. Means we need to prove CT is equal to AT and BT is equal to DT. Right?
segment of one chord are equal to corresponding segment of other chord. Means we need to prove CT is equal to AT and BT is equal to BT. Right? कि इसका सेगमेंट ये वाला इसके पार्ट के इक्वल है और ये छोटे वाला सेगमेंट छोटे पार्ट के इक्वल है. ये हमें प्रूव करना है. अगेन वी हैव theorem 10.6 and 10.7. We will use them. Okay. Let this is the center of the circle O. Constructions करनी पड़ेंगे हमें यहाँ. Draw perpendicular on chord AB and CD. Let these perpendicular are OL and OM. Okay. And join OT. Right construction here. Construction. Draw OL perpendicular. OL किसके ऊपर perpendicular है? Chord AB पे. And OM perpendicular on CD. Join OT. Right? Now proof. We have to prove these two corresponding parts are equal. Yes, students. You know that perpendicular from a center of a circle to a chord bisect the chord. Right? We have done this result also. Perpendicular from a center of a circle to a chord bisect the chord means AL is equal to LB. यही करता है कि जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से कॉर्ड पे वो उसको क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है. इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? AL और LB इक्वल हो जाएंगे और CM और MD इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. AL और LB पार्ट इक्वल है. अगर मेरा ये पार्ट LT इसको मैं TM के इक्वल प्रूव कर दूं, LT इज इक्वल टू TM. ठीक है. कॉर्ड्स तो इक्वल है. कॉर्ड्स AB और CD तो इक्वल हैं. उनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे. राइट. हाफ क्या हो गया? हाफ ऑफ AB क्या हो गया? अब AL. क्योंकि ये क्या करता है? हाफ ऑफ AB AL क्यों हुआ? क्योंकि ये परपेंडिकुलर क्या करता है बेटा? इसको बाइसेक्ट कर देता है. इट मीन्स AL इज इक्वल टू क्या हो गया? LB. तो यहां पर क्या हो गया? इसका हाफ पार्ट हमने ले लिया AL और इसका हाफ पार्ट हमने ले लिया यहां पर CM. यानी कि इनके हाफ पार्ट्स तो इक्वल हो चुके हैं. हमें प्रूव क्या करना है कि AT और CT को इक्वल दिखाना है. ये वाले पार्ट तो हम इक्वल दिखा चुके हैं. AL इज इक्वल टू CM. ठीक है. अगर मेरा ये वाला पार्ट भी इक्वल आ जाए, LT इज इक्वल टू MT, तो हम दोनों में इनमें ऐड कर देंगे. AL प्लस LT इज इक्वल टू CM प्लस MT. तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? AT इज इक्वल टू CT. ये हमें प्रूव करना है. तो बात ये है कि हम ये कैसे इक्वल प्रूव करेंगे LT और MT को. ये स्टूडेंट्स आपको यहाँ ट्राइंगल्स दिख रहे हैं. अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा. ना कैसे प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट? कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. राइट. एंड OL इज इक्वल टू OM. Why? If chords are equal, then they are equidistant from the center. Center से equidistant हो गया अगर chords equal है. chords हमें equal given है. AB is equal to CD हमें given है. जो थ्योरम 10.6 थे उससे क्या हो गया? OL is equal to OM हो गया. एंगल 1 is equal to एंगल 2. OT क्या हो गया यहाँ पे? कॉमन. तो कौन सा क्राइटेरिया लगा? RHS कॉन्ग्रुएंट रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. और CPCT से LT इज इक्वल टू MT हो जाएगा. जब ये इक्वल हो जाएंगे तो हम AL और CM में हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AT इज इक्वल टू CT. राइट. चलो देखते देखते कैसे.
Now in triangle, first we will consider triangle. In triangle OLT and OMT, we have angle 1 is equal to angle 2, each 90 degree, and OT is equal to OT, common, okay, and OL is equal to OM. Reason? Equal chords of a circle are equidistant from the center. Equal chords of a circle are equidistant from the center. Okay? Equal chords of a circle are equidistant from the center. Then by RHS congruent rule, RHS लगेगा ना, triangle OLT is congruent to triangle OMT, right? ये हमारे पास क्या हो गई, triangles congruent हो गई, okay? AB is equal to CD को इक्वेशन 1 दे देते हैं, और अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से हमारे पास क्या आ जाएगा, LT is equal to TM, ठीक है? दिस implies LT is equal to TM. Reason? By CPCT. Equation 2. Okay. Now given क्या हमें, AB is equal to CD, which is given. तो हमारे पास इसका हाफ भी इक्वल होगा, हाफ ऑफ AB is equal to हाफ ऑफ CD. हाफ क्या होगा हमारे पास AB का, AL is equal to CM. क्यों होंगे ये हाफ, बिकॉज परपेंडिकुलर from the center to a chord bisect the chord. Perpendicular from the center bisect the chord. तो AL is equal to CM हो गया, A होगी 2, नहीं 2 नहीं सॉरी 3. Now add 2 and 3, 2 और 3 को ऐड कर देते हैं. जब हम ऐसे दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होती है और राइट हैंड साइड राइट में, राइट? सो इट विल बी AL प्लस LT इज इक्वल टू CM प्लस MT. दोनों को ऐड कर दिया, इसका लेफ्ट पार्ट LT और इसका A, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और राइट हैंड साइड दोनों प्लस हो जाएंगे. नाउ यू कैन सी हियर AL प्लस LT इज 80, right? It is 80 and CM plus MT is CT. Okay, ये तो प्रूव हो गया हमारा AT is equal to CT. Now we have to prove BT is equal to DT also. So this is equation 4. अगर मैं इस AB में से ये वाला पार्ट माइनस करूं तो यही बचेगा, ठीक है बेटा? सो इक्वेशन 1 हमारी थी AB is equal to CD. अगर फर्स्ट में से मैं इक्वेशन 4 को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? माइनस भी सेम करेंगे, कैसे? लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में से माइनस होगा और राइट हैंड साइड में राइट साइड पर CD. AB में से माइनस होगा AT और CD में से माइनस होगा CT. AB माइनस AT क्या आएगा? AB माइनस AT विल बी BT एंड CD माइनस CT विल बी DT. Hence proof. ये तो हमें प्रूव करना था कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट कॉर्ड्स के इक्वल होंगे, AT के इक्वल CT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब बड़े वाले पार्ट के इक्वल होगा और स्मॉलर वाला स्मॉलर वाले पार्ट के इक्वल होगा. AT इज इक्वल टू CT एंड BT इज इक्वल टू DT. कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ आपको ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद
आपको ये वाला रिजल्ट यूज करना है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। और फिर यहां से एक बार इनको ऐड कर देना इक्वेशन को और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, फिर द फिगर विल बी सेम जैसे हमने सेकेंड क्वेश्चन में ड्रॉ की थी, फिगर वही बनेगी थर्ड क्वेश्चन में भी। वी हैव टू इक्वल इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स है, ठीक है। फिर से कैसे हैं, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी डी, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल टी, इंटरसेक्शन पॉइंट हम ले लेते हैं टी, ओ सेंटर, एंड देन वी विल ड्रॉ perpendiculars on both the chords and name them L and M. Join OT. Okay. Prove that the line joining the point of intersection, कौन सी line join कर रही है point of intersection T को, OT. This is the line joining the point of intersection to the center. OT जो है वो लाइन है जो सेंटर को और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर रही है। मेक्स इक्वल एंगल विद द सेंटर, कि ये इक्वल एंगल बनाते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। दिस इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, व्हाट वी हैव टू प्रूव, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगेन गिवन इज सेम, AB is equal to CD, chords are equal. To prove angle 1 is equal to angle 2. समझ आया बेटे? The line joining the point of intersection, कौन सा point of intersection T to the center, center कौन सा है O, ये लाइन है जो ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर को और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, makes equal angle with the chords. chords कौन सी हैं ये, इनके साथ इक्वल एंगल बना रही है, मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 को हमें क्या प्रूव करना है, इक्वल। इजी है, कंस्ट्रक्शन सेम रहेगी जो सेकंड क्वेश्चन में लिखी थी, अब राइट अपने आप लिखोगे, देन प्रूफ। इसमें हमने क्या किया था, सेकंड क्वेश्चन में इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। ये क्वेश्चन तो हमारा सीधा सीधा यहीं से हो गए कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो in triangle OLM and OMT we have angle 3 is equal to angle 4, each 90 डिग्री, अपने आप लिखोगे रीजंस क्योंकि सेम है जो हमने सेकंड क्वेश्चन में यूज किए हैं। OT is equal to OT कॉमन एंड OL is equal to OM, क्या आएगा, इक्वल chords of a circle are equidistant from the center। क्या लिखोगे यहाँ पे, इक्वल chords of a circle are equidistant from the center। Then by RHS congruent rule, triangle OLM is congruent to triangle OMT. If these triangles are congruent, then by CPCT angle 1 will be equal to angle 2, right? That we have to prove. Okay, hence prove. सिंपल था क्वेश्चन, सेकंड वाले से सिर्फ हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था बेटा इसमें। यस, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O at A, B, C and D, prove that AB is equal to CD. Okay, given क्या है आपको, two concentric circle with center O. Two concentric circle means with the same center, दोनों सर्कल्स का सेंटर क्या रहेगा, सेम रहेगा O. Okay, इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट्स A, B, C, D और A, B, C and D पे। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AB is equal to CD। कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू द कॉर्ड AD OL। ओके, ड्रॉ OL परपेंडिकुलर ऑन AD। AD पे परपेंडिकुलर है तो BC पे तो अपने आप ही है, ठीक है। अगर ये AD पे परपेंडिकुलर है तो BC पे भी परपेंडिकुलर है।
Yes, here from here we can write AD is equal to AL is equal to DL. Why? As perpendicular from the center bisect the chord. क्या करता है परपेंडिकुलर? सेंटर से ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को क्या कर देता है बेटा? ये बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को. ये है आपकी थ्योरम 10.3. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. यहां लिखोगे आप परपेंडिकुलर थ्योरम 10.3. पूरा स्टेटमेंट लिखोगे. मैं अभी ऐसे शॉर्टकट में लिख रही हूँ. लर्न भी करोगे और लिखोगे भी. ओके, गिव देम एज इक्वेशन 1. Similarly, we can write this BL is equal to CL. ये भी तो एक कॉर्ड है. BC भी तो स्मॉल सर्कल की. AD किसकी कॉर्ड थी? बिगर वाले सर्कल की. और स्मॉल सर्कल की कॉर्ड क्या है? BC. जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से, ये इसको भी क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा. सेम रीजन. ठीक है. एंड इक्वेशन 2. अगर हम 1 माइनस 2 करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. AL minus BL is equal to DL minus CL. ओके, AL में से अगर आप BL को रिमूव करोगे तो क्या बचेगा? AB. सिमिलरली अगर DL में से CL को रिमूव करोगे तो क्या बचेगा? CD. This implies AB is equal to CD. Hence proof. हमें यही प्रूव करना था बेटा. ओके, सिंपल है.